Assalamu alaikum. Welcome to Learning and Interaction with Miss Aisha Khadir. I am here with my new video on topic O-level biology, past papers. Set the difference between champion and second place. Today we will do Year 2010, Paper 1, Variant 1, MCQs number 21 to 40, Part 3. Please like and subscribe my YouTube channel for getting update related biology topic. On MCQs number 21, the diagram shows a section through the brain and part of the spinal cord. Okay, this is the brain and part of the spinal cord. This draw correctly identifies the cerebral hemisphere, cerebellum, medulla and pituitary gland. First of all, to solve this MCQs, you should know about the anatomy of your brain and spinal cord. So options are there: cerebral hemisphere, cerebellum, medulla, pituitary gland. A, B, C, D. Cerebral hemisphere P, P, Q, S. Cerebellum Q, R, R, P, R, Q, S, R. Medulla. Pituitary gland S, S, P, Q. First of all, I am going to label the parts of the brain. What is this? This is the cerebrum. This is the cerebrum, which covered the largest part of the brain. So ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया cerebrum, which is cerebral hemisphere. What is this? This is coiled region just located behind this brain stem is called cerebellum. What is the role of cerebellum? The role of cerebellum is to control the balance and the posture. What is this? This piece-shaped structure which is hanging like in a structure is called pituitary gland. And what is this? This is medulla. So which option is the right option? Cerebral hemisphere P, yes. Cerebellum Q, yes. Medulla R, yes. And pituitary gland S, yes. So option number 1 is the right option. Which is not controlled directly by the nervous system. Which is not controlled directly by the nervous system. Option A, blood glucose concentration. Option B, dilation of blood vessels. Option C, heart rate. Option D, pupil diameter in eye. So blood glucose concentration is not directly controlled by nervous system because it is controlled by pancreas. Pancreas by releasing hormone, insulin and glucagon. While dilation of blood vessels is the part of temperature regulation and it's done by the hypothalamus. Same heart rate is the working of medulla oblongata, and pupil diameter in eye is also the reflex section which is controlled by your nervous system. So only blood glucose concentration is the right option, because if blood glucose concentration is higher, अगर blood की glucose की concentration higher होगी तो क्या चीज़ रिलीज होगी? इंसुलिन रिलीज होगी. व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन पैनक्रियास से रिलीज होगी फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, एंड व्हाट इट कैन डू? इट कैन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. एंड व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज लोअर, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब लोअर हो जाएगी तो क्या चीज़ रिलीज होगा? ग्लूकागॉन रिलीज होगा फ्रॉम द अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, एंड व्हाट इट कैन डू? इट कैन break down glycogen, stored glycogen into glucose. Okay, so option number A is the right option. Okay, the diagram shows a reflex arc in which a bee sting causes an arm to move quickly. What is reflex action? Reflex action is the involuntary type of action, and they are, you can say, protective type of action. When your body experience any type of shock, any type of harmful stimulus, so instead of sending message towards the brain, your body send message towards the spinal cord, and spinal cord से ये message आगे conduct करा जाता है और इसके ऊपर working की जाती है. So 3 parts are there: sensory neurons, relay neurons and
मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। रिले न्यूरॉन्स आर कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, दे सेंड इन्फॉर्मेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स टू द मोटर न्यूरॉन्स। वी आर द सेंसरी न्यूरॉन्स which are taking the information, which are getting sensation, are motor neuron which basically give information to muscles or gland in order to perform their action. And what is relay neuron? Because relay neuron is the connecting neuron. So what is the question? If the relay neuron at Q is damaged, ये relay neuron जो Q पर हैं ये हो गए हैं आपके damage, how will the transmission of nerve impulse in the reflex arc is affected? क्या होगा जब ये चीज़ डैमेज हो गई है? जब ये चीज़ डैमेज हो गई है तो ये पाथवे ब्रेक हो जाएगा, ये चेन ब्रेक हो रही है, ये चेन ब्रेक हो रही है, इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये वाला रीजन आपका क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, दे कैन नॉट पास फ्रॉम P to Q। P to Q का इशू नहीं है। व्हाट इज़ द बेसिक इशू? P to R जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, यानी सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज मोटर न्यूरॉन्स तक नहीं जाएगा। बी इज़ द राइट ऑप्शन। द डायग्राम शोज अ पर्सन डूइंग पुल-अप्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल बार इन अ मूविंग फ्रॉम द लोअर पोजीशन X टू अपर पोजीशन Y। देखो लोअर पोजीशन X है, यहाँ पर जो है आर्म कैसा है? आर्म एक्सटेंडेड है। आर्म कैसा है? एक्सटेंडेड है। और यहाँ पर देखो आर्म क्या हो गया? आर्म फ्लैक्स हो गया। ठीक है, तो व्हाट हैपन विद द बाइसेप्स? बाइसेप्स क्या हो रहे हैं? बाइसेप्स, आप अपना हाथ जो है वो इस तरह से करके चेक करो, आपको फील होगा कि बाइसेप्स क्या हो रहे हैं? दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग। जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ट्राइसेप्स रिलैक्स होंगे, बिकॉज दे आर एंटैगनिस्टिक मसल्स पेयर। दे आर एंटैगनिस्टिक मसल्स पेयर। बाइसेप्स कौन से मसल्स हैं? ये वाले मसल्स। देखो ये दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग। यहाँ जब आपका हाथ, जब हैंड एक्सटेंड था और फिर आपने हैंड इस तरह से आपने जो है वो इस पोजीशन पे लेकर आए हो, तो व्हाट हैपन विद बाइसेप्स? बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट। बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, ट्राइसेप्स क्या होंगे? रिलैक्स। एंड व्हाट हैपन विद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होगा? रोटेट होगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होगा? रोटेट। एंड व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? कहाँ प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है बिटवीन योर शोल्डर बोन which is called scapula and the head of humerus. The head of humerus is fixed in scapula. Scapula having socket and humerus having ball. So this is called ball and socket joint, and it rotates when person change its position from X to Y. Okay, so option number A is the right option. Bacteria were grown. Now MCQs number 25. Bacteria were grown on an agar plate until the plate was covered with visible yellow bacterial colonies. 4 discs containing equal amount of different antibiotics were then placed on the agar plate. After 2 days, clear areas had formed around some of the discs as shown in the diagram. These are basically bacterial colonies, these are antibiotic discs, and this is clear area. Clear area represent no bacteria. No bacteria means bacterial killing. It's mean around the antibiotic, the area which is cleared, it mean this area is devoid of any bacteria because bacteria of this area has been killed. Okay, what conclusions about this experiment is correct? Option number A, antibiotic W is more effective against this bacteria than antibiotic X. देखो antibiotic W and antibiotic X किसके अराउंड ज़्यादा क्लियर एरिया? एंटीबायोटिक्स W के अराउंड। इसका मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव है। यस, दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. लेट्स check other option also. Antibiotic Y is more effective than W. No, because देखो Y के अगेंस्ट जो एरिया है वो कम है और W के अगेंस्ट ज़्यादा है. W has a higher concentration of antibiotic than DXY. No, एंटीबायोटिक के देखो कंसनट्रेशन सब में इक्वल है, किसी में कम ज़्यादा नहीं है. The DXZ contain no antibiotic. No, ऐसा नहीं. Antibiotic is there but having no role on this bacteria. ऐसा क्यों है? Because this bacteria may become antibiotic resistant. ये बैक्टीरिया क्या हो गया? इस एंटीबायोटिक Z से रेजिस्टेंट इसने डेवलप कर ली, इस वजह से अब इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इस एंटीबायोटिक का. ओके,
basically option number A is the right option, that antibiotic W is more effective against these bacteria than antibiotic X, क्योंकि W के अराउंड ज़्यादा एरिया क्लियर है, W ने ज़्यादा वर्किंग करी, W ने ज़्यादा बैक्टीरिया किल किया, जो कि एंटीबायोटिक का रोल है. ओके, द डायग्राम MCQs नंबर 26. द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर देखो. In what ways does this differ from a cell of fungus? That bacterium has a cell membrane, fungus में भी होती है. Bacterium has a cell wall, fungus में भी होती है. The bacterium has cytoplasm, fungus में भी होता है. The bacterium has no true nucleus. Yes, this is the right option because fungus, जो आपका fungus है, fungus are eukaryotic. Fungi are basically fungi, not fungus. जो आपके फंगस हैं वो यूकैरियोटिक. फंजाई आर यूकैरियोटिक in nature, having true nucleus. Having true nucleus. इस वजह से this option is the right option, that bacteria has no true nucleus. Okay. MCQs number 27. During the production of yogurt and cheese, the pH of the mixture changes. What causes this change in pH? pH क्या होती है? pH lower हो जाती है. क्यों lower हो जाती है? Because of the formation of acid. Acid कहाँ से बन रहा है? Breakdown of lactose sugars. क्यों? Because in anaerobic respiration, lactose sugar convert into lactic acid. Lactic acid. और acid की वजह से pH will become decrease. कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन नो, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल नो, बिकॉज इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं होता योगर्ट एंड चीज़ में. इथेनॉल कहाँ प्रोड्यूस होता है? ईस्ट के साथ प्रोड्यूस होता है. ठीक है, योगर्ट एंड चीज़ में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा व्हेन यू आर यूजिंग बैक्टीरिया. योगर्ट एंड चीज़ में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं. एंड बैक्टीरिया जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, इथेनॉल नहीं. अपटेक ऑफ ऑक्सीजन नो. What would be an undesirable feature in an insecticide? Insecticide का undesirable feature क्या होगा? It become more concentrated at each stage in the food web. Yes. It break down within few months. No. It destroy one particular insects only. No. It destroy the immature form of insects. No. Because these all are the desirable features. ना? अगर एंटीबायोटिक खुद से few months में kill हो जा रहा तो it's good. और अगर वो एक ही तरह का पर्टिकुलर इंसेक्ट्स किल कर रहा है तो इट्स वेरी गुड, ताकि वो यूजफुल इंसेक्ट्स को या पॉलिनेटर्स को किल ना करे. और अगर वो इमेच्योर फॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स किल कर रहा है तो इट्स ऑल्सो गुड, क्योंकि ताकि वो इंसेक्ट बड़ा ही ना हो सके, अपनी कोई रिप्रोडक्शन ना कर सके, और अपनी इमेच्योर फॉर्म में व्हेन इट वाज लार्वा वो उसी स्टेज में किल हो जाए. बट व्हाट हैपेंड हियर? इट बिकम मोर कंसंट्रेटेड एट ईच स्टेज इन द फूड वेब. हाउ इज इट पॉसिबल? बेसिकली व्हाट हैपेंड हियर, let's suppose this is a leaf, this is the leaf. Okay, this is the leaf. What you have to do, आपने इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया इस लीफ के ऊपर, आपने इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया इस लीव्स के ऊपर. अब इस लीव्स को या उस प्लांट के लीव्स को बहुत सारे कैटरपिलर्स थे जो कि इसको ईट कर. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट कैटरपिलर्स हैं जो इस प्लांट को ईट कर रहे हैं. अब इन सारे कैटरपिलर्स की बॉडी में ये आपका इंसेक्टिसाइड पहुंच गया. इफ आई एम सेइंग कि ये इंसेक्टिसाइड लीफ में था, जिस लीफ को 3 कैटरपिलर्स ने खाया, तो अब ये 1 से इसमें भी चला गया, इसमें भी चला गया, इसमें भी चला गया. यानी अब ये 1 से क्या बन गया? 1 से ये 3 बन गया. अब लेट्स सपोज कि एक आपका बर्ड है, या सिंपल बर्ड है आपका, जो इन तीनों कैटरपिलर्स को खा रहा है. अब और इनके अलावा और भी कैटरपिलर्स को खा रहा है. लेट्स सपोज वो 5 और कैटरपिलर्स को खा रहा है. अब क्या होगा? ये बर्ड्स की बॉडी में जाकर ये 5 हो जाएगा. इस तरह हर स्टेज के फूड वेब, अगर लीफ में 1 था, इस कैटरपिलर ने 1 से ज़्यादा लीफ खाए. एक कैटरपिलर लेट्स सपोज 3 लीव्स तो खा रहा है, तो ये 3 हो गए. देन एक बर्ड
4-5 कैटरपिलर को खा रहा है, तो ये उससे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर स्टेज पे फूड वेब में इंसेक्टिसाइड और कंसनट्रेटेड होता जा रहा है एंड इट इज़ अनडिजायरेबल फीचर। ओके, द डायग्राम शोज अ फूड वेब इन वुडलैंड. Green plant is eaten by locust, rats, aphid, snails. Locust, lizard, beetles. Basically, aphid are eaten by beetles. Locust is eaten by lizard, and locust is also eaten by toads. Lizard is eaten by snake. Beetles is eaten by bird, and snails are also eaten by birds. In this food web, the beetles are what the beetles are. अब beetles की position देखो. Beetles. Aphid is eaten by beetles. Beetles क्या कर रहे हैं? Is eaten by aphid is eaten by beetles. इसका मतलब aphids क्या हैं? Aphids are herbivores because aphids क्या खा रहे हैं? Green plants. And beetles are carnivores because beetles क्या खा रहे हैं? Aphids. So these are carnivores. Okay. Which bacteria convert urea to ammonia? Urea to ammonia कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है? कौन से प्रोसेस है ये यूरिया से अमोनिया कन्वर्ट करना? यूरिया इज़ द एस्क्रेटरी मटीरियल. यूरिया इज़ द एस्क्रेटरी मटीरियल. एस्क्रेटरी मटीरियल को इफ़ यू स्टडी अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में आपने पढ़ा होगा कि एस्क्रेटरी मटीरियल जो यूरिया है उसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, और ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं डिकेइंग बैक्टीरिया. डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्यों नहीं करते? बिकॉज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बेसिकली जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड हैं, जैसे अब अमोनिया है, NH3 है, या NO2 है, या NO3 है, बेसिकली इसमें से नाइट्रोजन को रिलीज़ करवा देते हैं. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं. लाइक अगर NH3 है तो इस NH3 को NO2 बना देंगे, इस NO2 को NO3 बना देंगे, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करवाते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बेसिकली नाइट्रोजिनस कंपाउंड का पार्ट बना देते हैं, लाइक NH3, NO2, NO3. सो बेसिकली आपके डिकेइंग बैक्टीरिया हैं जो आपके एस्क्रेटरी मटीरियल को ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से क्या रिलीज़ करते हैं? अमोनिया रिलीज़ करते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन. Which control measures would not help to prevent the spread of malaria? Okay. Which option is the right option? Boiling drinking water? Yes. Covering windows with netting? No. Draining swamps? No. Spraying insecticide onto the staging water? No. Because देखो मलेरिया किससे हो रहा है? मलेरिया हो रहा है आपके प्लाज्मोडियम से. And what is the vector for plasmodium? प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर कौन है? मॉस्किटोज. So you have two options to prevent from malaria. या तो प्लाज्मोडियम को किल कर दिया जाए, या तो मॉस्किटो से अपने आप को प्रिवेंट किया जाए, मॉस्किटोज को किल कर दिया जाए. इफ़ यू आर कवरिंग विंडोज विथ नेटिंग, इट्स मीन यू आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम मॉस्किटोज. इफ़ यू आर ड्रेनिंग स्वैम्स, सो यू आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम मॉस्किटोज बिकॉज मॉस्किटोज lay eggs on stagnant water. Spraying insecticide onto the stagnant water ताकि मॉस्किटो लार्वा किल हो सके. यानी these all methods में you are preventing from mosquitoes. You are preventing from mosquitoes. But boiling drinking water has no effect. क्योंकि अगर आप ड्रिंकिंग वाटर को बॉईल कर रहे हो तो मलेरिया का इससे कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज मलेरिया आपके वाटर में नहीं होता. मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम जर्म है ये आपका वाटर में नहीं है, ये आपके मॉस्किटोज के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है. और मॉस्किटो क्या इसके ऊपर फीड कर रहे हैं? आपके ब्लड के ऊपर. यानी आप वाटर ड्रिंकिंग वाटर आप चाहे बॉईल करके पी लो, उससे प्लाज्मोडियम किल नहीं होगा. प्लाज्मोडियम किल नहीं होगा, मॉस्किटो किल नहीं होगा. ओके. Why it is important to control the amount of nitrate fertilizer used on farmland? Nitrate causes acid rain which kills trees and fish. No. Nitrate decreases the fertility of soil. No, because it increases the fertility. नाइट्रोजन may lead to excessive growth of water plant. Yes, because जब वो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र रीच करता है करीब करीब जो वाटर सोर्स है, जैसे आपके पॉन्ड्स हो गए या लेक्स हो गए, तो वहाँ पर वाटर प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन. बिकॉज वाटर दिस द होल चेन दैट एंड दिस प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन, जिसमें क्या है कि अगर यू आर यूजिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन इन fertilizers and chemical fertilizers,
So what happened here, these fertilizers reach at water surface and cause destruction. So basically first step what happened there, that water plants start to bloom and cause green color of water onto its surface. तो ये प्रोसेस आपका किसकी वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से होता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. नाइट्रेट पॉइजन्स में काइंड ऑफ क्रॉप पॉल्यूशन नहीं. Now 33. The diagram shows a section through a flower. This is the section through the flower. Okay. In which structure are haploid nuclei formed by reduction division. अब देखो haploid nuclei कहाँ बनते हैं. Haploid nuclei आपके बनते हैं किसमें, गैमेट्स फॉर्मेशन में होता है haploid nuclei. यानी या तो पॉलन ग्रेन बनते हुए होंगे. रिडक्शन डिवीजन कब होगी, या तो पॉलन ग्रेन बनते हुए होगी या तो आपकी ओव्यूल बनते हुए होगी. तो पॉलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, एंथर के अंदर फर्स्ट, और आपके ओव्यूल कहाँ बनते हैं, ओवरी के अंदर. दीज आर बेसिकली ओव्यूल. सो फर्स्ट एंड 3 इन दोनों में होगी रिडक्शन डिवीजन, ताकि कि जब ये फ्यूज हो सके तो डिप्लॉयड नंबर अटेन हो सके. तो दिस इज द राइट ऑप्शन. 1 और 4 क्यों नहीं, क्योंकि 4 आपका सेपल्स है. सेपल्स में रिडक्शन डिवीजन नहीं होती. सेपल इज द पार्ट ऑफ, नॉट द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेपल्स आर the part of vegetative part, so it divide by mitosis, not meiosis. Same 2 3. 2 is the stigma, okay, and 3 is not the correct option. Basically it's not the correct combination. And D 2 and 4 no. So only 1 and 3 is the right option. That pollen grains में reduction, pollen grains बनते हुए reduction division हो रही है, या तो फिर आपके ओव्यूल बनते हुए reduction division हो रही है. Okay. A germinating seed is sowed in blue dye, which become colorless in tissue that are actively respiring. Okay. What will be appearance of cotyledon plumule and radicle? जब inside the seed है तो हर चीज़ अभी एक्टिवली एस्पायरेशन कर रही है, कॉटिलेडन भी, प्लूम्यूल भी, रेडिकल भी. सो दैट्स वाई ब्लू डाई शुड कलरलेस बिकम कलरलेस इन ऑल 3 कैटेगरीज. सो दिस इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज कॉटिलेडन इज ऑल्सो एस्पायरिंग, प्लूम्यूल इज एस्पायरिंग, रेडिकल इज एस्पायरिंग. सो कलरलेस, दिस ब्लू डाई बिकम कलरलेस. ओके. MCQs number 35. After sexual intercourse, sperm can survive 3 days in the uterus and ovida. Sperm, how many days sperm can survive? 3 days. Ovulation can occur any time from day 13 to 15. An egg can live for 2 days after ovulation. How long is the longest possible fertile phase of menstrual cycle? Okay. We are considering that sperm कितने days survive कर सकता है? 3 days. 1, 2, 3 days. ओव्यूलेशन किस टाइम पे होगी? 13 से 15 किसी भी दिन हो सकती है. यानी हम 3 लाइक 13, 14, 15. एंड एग कितने दिन सर्वाइव कर सकता है? एग और मज़ीद 2 डेज सर्वाइव कर सकते हैं. 16th और 17th डे तक सर्वाइव कर सकता है. इट्स मीन इफ वी आर कंसीडरिंग दैट स्पर्म इज ट्रांसफर 1 to 3rd. स्पर्म के थर्ड डे व्हाट हैपन हियर? ओव्यूलेशन हो गई. यानी कि दिस इज योर, आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ दिस पैन. 1, 2, 3 स्पर्म का थर्ड डे, बट ओव्यूलेशन का फर्स्ट डे बिकम थर्ड डे, देन 4th, 5th, 6th, 7th. यानी पॉसिबल टाइम कितना है फर्टिलाइजेशन का? लॉन्गेस्ट 7 days. सो ऑप्शन नंबर टी इज द राइट ऑप्शन. अगेन स्पर्म 3 days अलाइव रह सकता है ना. तो 1, 2, 3 स्पर्म का थर्ड डे, बट ओव्यूलेशन का फर्स्ट डे. ओव्यूलेशन कब हो रही है? या तो 13 को भी हो सकती है, 14 को भी हो सकती है, 15 को भी हो सकती है. यानी हमने ओव्यूलेशन के लिए 3 days सेट करी. आफ्टर ओव्यूलेशन 2 days और ऐड कर लो, क्योंकि एग जो है जब तक अलाइव है आपका. तो ओव्यूलेशन के 3 days, देन आपके एग अलाइव रहने के 2 days, और आपके स्पर्म के जो 3 days है, जो लास्ट 3 day है वो कंबाइन हो गया इसके फर्स्ट डे के साथ. तो यहाँ से 2 days टोटल कितने हो गए? 2 + 3 + 4 + 2 7 days होगा. तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल फर्टाइल पीरियड कितने डेज का हो गया? 7 days. द डायग्राम
Now MCQs number 36. The diagram shows how the blood of the human embryo flows close to the mother's blood in the placenta. अच्छा जी, this is mother blood which is coming down, which is coming down. You can see here mother blood is coming down, and this is embryo blood. Embryo blood कहाँ है? इस blood capillaries में, which is moving up. अब कौन सा लेकर जा रहा है? These are basically X is the baby blood, and what is Y? Y is the mother blood. Which substance are present at X in higher concentration than at Y? X में क्या चीज़ ज़्यादा होगी? X बेबी मदर को क्या दे रहा होता है? बेबी मदर को एक्सक्रीटरी मटीरियल दे रहा होता है, एंड मदर बेबी को क्या दे रही होती है? न्यूट्रिएंट्स दे रहे होते हैं. तो व्हाट हैपन हियर? X is the baby blood. X should contain carbon dioxide and urea. Okay? Because बेबी अपना जो एक्सक्रीटरी मटीरियल है वो मदर को सेंड कर रहा होता है. Which statement about human blood group is correct? Okay. So the person with the blood group A cannot have an allele O allele. This is incorrect because A आपके पास अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो वो इस तरह डोमिनेंट वाला A भी हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वाला भी हो सकता है. तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग होगा. A person with blood group B may either have genotype IBB or IB-IBO. Yes, वही वाली बात जो हमने A में करी थी. This option is the right option. In a person AB with blood group AB, the B allele is recessive. No, because A और B दोनों आपकी co-dominant allele है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि B allele जो है वो A पर recessive हो या A allele B पर dominant हो. This is the wrong option. The allele IO and IB are co-dominant, and if no, because allele IO जो है आपकी ये हमेशा recessive है, ये हमेशा recessive होती है, ये co-dominant नहीं हो सकती. सारे ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन. ओके. बैक्टीरिया कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन. बैक्टीरिया को आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया ह्यूमन इंसुलिन से. ये हमें मेथड पता है कि हम प्लाज्मिड को कट करते हैं और प्लाज्मिड के साथ हम ऐड ऑन करवा देते हैं आपका इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन. अब जितनी दफ़ा ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा उतनी दफ़ा ये जीन भी रेप्लिकेट होगा, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन. और जब इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होगा तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेगा? इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा. बैक्टीरियल इंसुलिन इज लेस अफेक्टेड इन ट्रीटिंग डायबिटीज़ एंड एनिमल इंसुलिन. नो, बिकॉज कि हम तो बैक्टीरिया से अपनी ही जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया की अपनी जीन तो नहीं है, यानी कि वी आर ट्रांसफरिंग ओन जीन ना, हम अपनी बॉडी की जीन बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. बैक्टीरिया के पास अपनी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन थी नहीं, तो इस तरह जो बैक्टीरियल इंसुलिन है वो सेम आइडेंटिकल है हमारे इंसुलिन को, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया में बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट. नो, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट वो नहीं बन सकता बिकॉज इट्स प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया में प्रोड्यूस टू मच इंसुलिन. नो, बिकॉज जीन आप अपनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो जीन वही काम करेगी जो आपकी बॉडी में करती आ रही थी. नाउ डी ऑप्शन, the presence of new gene in the bacteria may alter the way that existing working gene. Yes, this may happen because अगर आप एक न्यू जीन डाल रहे हो मे बी वो जीन दूसरी जीन्स के ऊपर अपना असर, अपना इफेक्ट शो करे. तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन. Which statement about chromosomes is correct? Chromosomes statement. Chromosomes are long DNA molecules called gene which are divided into sections. Chromosomes long DNA molecule हैं जिनको जीन कहते हैं, जो divided हैं into sections में. No. क्रोमोसोम इंक्लूड द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. यस, देखो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपका मौजूद है आपकी न्यूक्लियस में. हाउ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ? क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, एंड हिस्टोन प्रोटीन्स शुड बी देयर along which this DNA should fold after 200 nucleotides. So what I am saying that chromosome is a long molecule of DNA, yes, divided into sections called gene, yes. And what is gene? The fragment of DNA responsible to express particular characters called gene. So option number B is the right option. क्रोमोसोम क्या इंक्लूड करता है डीएनए मॉलिक्यूल को, और डीएनए मॉलिक्यूल के डिफरेंट फ्रैगमेंट्स जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं जीन. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन. क्रोमोसोम्स इंक्लूड जीन नहीं, क्रोमोसोम में जीन नहीं होती, डीएनए में जीन होती. क्रोमोसोम में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स होती.
जीन इंक्लूडिंग लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, नो। डीएनए में जीन है, जीन में डीएनए नहीं है, ओके। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स जीन, बेसिकली स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, ओके। So option number B is the right option. Now last MCQs, MCQs number 40. In a maze, one allele of a particular gene allow chlorophyll production. What is allele? First of all, get the concept of allele. Allele क्या होता है? Alternative forms of gene. Alternative forms of genes. It's mean that eye color की gene है. This is the color, this is the eye colored gene. Let's suppose this is the eye colored gene, and this is also the eye colored gene. But what happened here? This eye colored gene is giving green color, and this eye colored gene is giving blue color. This is basically alternative forms of gene. यानी कि काम दोनों का सेम है, दोनों का काम है आई कलर को शो करना, बट इनका इम्प्रेशन अलग है। एक शो करी ग्रीन आई कलर और एक शो करी ब्लू आई कलर। तो जो एलील है वो हमेशा पेयर में होती है, और कौन सी एलील अपनी रिप्रेजेंटेशन शो करेगी? जो कि डोमिनेंट होगी। तो हम बात वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वन एलील ऑफ पर्टिकुलर जीन अलाउ क्लोरोफिल प्रोडक्शन, वन क्लोरोफिल प्रोडक्शन को अलाउ कर रही है और अदर अलाउ नहीं कर रही। हाफ ऑफ द सीड फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन टू ग्रीन लीफ प्लांट वर सोन इन अ ट्रे kept in dark, and other half were sown in similar condition except they received light. The table gives the result obtained. Number of seedlings kept in the dark, kept in the light. Green leaves, green leaves, green leaves, green leaves. Kept in the light, green leaves कितने हैं? कम है, और green leaves कितने हैं? ज़्यादा हैं। Kept in the dark, green leaves is 405 होगा, 405 होगा, और रिलेटिवली हमने कहा था कि हम इक्वल अमाउंट में रखे थे। तो जब अगर ग्रीन लीफ इतने ज़्यादा हो गए तो ना ये ऑप्शन हो सकता है, ना ये ऑप्शन, ना ये ऑप्शन। ओनली दिस इज़ द राइट ऑप्शन कि ग्रीन लीफ ज़ीरो हो जाए, क्योंकि वैसे हमने कैप्ट इन डार्क, तो वो एलील एक्टिवेट ही ना हो जो क्लोरोफिल प्रोडक्शन करवा रही है, और रिजल्ट आपका क्या आया हो? ज़ीरो ग्रीन लीव्स, और ग्रीन लीव्स कितनी है? 405। बेसिकली 320 प्लस 110 430 नंबर। अब 430 अगर आप 405 में आप इसमें से कुछ भी ऐड करोगे तो ये नंबर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, और यहाँ पर हमने कहा था कि हमने रिलेटिवली इक्वल हाफ अमाउंट में रखना। अगर 430 यहाँ है तो इट्स पॉसिबल कि 405 यहाँ हो, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि 405 प्लस 110 515 यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत डिफरेंस है। सेम ना ये पॉसिबल है और ना ये पॉसिबल है, क्योंकि इट्स having more differences. The green leaves may become zero because you kept the plant in dark, chlorophyll activating producing gene activate ही ना हुई हो, और आपका जो ये रिलेटिव नंबर है वो 405 इज़ द करेक्ट नंबर, जो इनका रिलेटिव रेशो शो कर रहा है। इक्वली हाफ तो नहीं है, बट इक्वलेंट शो कर रहा है कि जो है वो सिमिलर अमाउंट में है, 405 एंड 430। सो we have done with this paper today, paper Air 2010 May June MCQs 1 till 40. This is the part 3rd of the video, and I hope that you have watched part 1st and 2nd of this video. If not, so I will providing you link in the description box. Kindly go through these links also and complete the whole paper and all MCQs number 1 till 40. Best of luck for your CIs. So in next class, inshallah, in next class we will do Air 2010 paper 1 variance to MCQs number 1 till 20. So till then, thank you for joining us, thanks for following us. Allah Hafiz.